But can you guys hear me? Is there any echo? आवाज आ रही है मेरी? गुड. दिस वाज द बेसिक एपरेटस वाला पार्ट. ठीक है. हर तरह का एक टाइप का क्वेश्चन इस वर्कशीट में जो आप कर रहे हो देयर इज प्रेजेंट. तो थीम 1 में एपरेटस का डिस्कशन है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है? इट सेज द स्टूडेंट कलेक्ट्स 48 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स वॉल्यूम, during the first 2 minutes. Okay, that's time. Then they say calculate the mean rate of reaction in cubic centimeter per second. That is very important. They want us to have rate in cubic centimeter per second, not minutes. So what do? We divide 48.0 with 2 times 60. Why are we dividing? Because that's the way we can get answer in cubic centimeter per second. क्या आ रहा आंसर? 0.4. Done? Then they say hydrochloric acid is neutralized. Hydrochloric acid is neutralized when it is added to aqueous potassium hydroxide, that is KOH. The reaction is exothermic. Okay. So neutralization equation is there. Reaction is exothermic. P is aqueous potassium hydroxide. This is P. Q is 2.24 moles per liter HCl. This is Q. And 2.24 moles per liter. ये क्या होगा Q का? What do you think? ये क्या है? That's concentration. How do we decide कि ये concentration है? Because this is moles dissolved in liters. Okay. Then they say a student determines the concentration of potassium hydroxide P. Okay. The student does 6 experiments. ठीक है. अब आप जरा इसे पढ़ लो. मैं read करूंगा तो you won't be able to understand it. आपके पास ये मौजूद है. Done? Okay. So first thing is the student uses a volumetric pipette to add 25 cubic centimeter of P. Pipette क्या होता है? Pipette basically is like a straw which is calibrated. तो जिस तरह का होगा उसके ऊपर क्या कहते हैं, इस तरह का एक straw type बना होगा, उसके ऊपर measurements हो. ठीक है. So which is usually used to pipette out acid. जब भी हम pipette की बात करते हैं वो हमेशा acid के लिए यूज करते हैं. कुछ कभी कभार ये भी मेंशन होता है कि इसके ऊपर हम जो है ओपनिंग के ऊपर एक बबल लगा देते हैं गैस का या रबर का. उससे क्या होता है, उससे सक्शन में काफी आसानी हो जाती है. तो उसको भी देखते हैं अभी ये क्या होता है इक्विपमेंट. देन पार्ट 2 says uses the measuring cylinder to add 20 cubic centimeter of distilled water to the plastic cup.
ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर एक वर्टिकल सिलेंडर होता है, समथिंग लाइक दिस। उसके ऊपर आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, ठीक है। Stirs the mixture in the cup with a thermometer and records its temperature to nearest 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि 1 डेसिमल प्लेस में टेम्परेचर का आंसर देना है, ठीक है। ओके। यूजेस अ ब्यूरेट टू ऐड 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ क्यू टू द प्लास्टिक कप, ठीक है। एक ब्यूरेट वर्टिकल मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी रेंज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पे एक स्टॉपर होता है, उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ऐसे ऐड करते हैं। ये तीनों पीस ऑफ इक्विपमेंट हर एक पी फोर में यूज हो रहे होते हैं। तो अभी हम जब ये खत्म कर लेंगे तो आपको इस स्लाइड्स में नजर भी आ जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं है। आगे चलते हैं। देन व्हाट एल्स? Records the highest temperature reached, empties the plastic cup with water, repeats these steps so that the total volume in the cup is always 50, which is very important. ठीक है। वो टाइट्रेशन कर रहा है और उसने 5-6 दफा ये काम किया है और अब हमसे वो कहता है कि भाई टेबल अब देखो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई बात पूछनी है? नो? गुड, लेट्स मूव ऑन। So if we bring this table here alongside the values we need, what we have is the students' results. ठीक है, ये रहे, okay. Volume of P is there, which is always 25. Volume of water, यहाँ पे missing है, 2 पे missing है, and then it's there. Volume of Q is there. ठीक है. What is this statement tells? Different volumes of distilled water, Q, and alongside P, so that total volume is always 50. What is that estimate? यानी कि इन तीनों फर्स्ट रोज का जो टोटल सम है वो हमेशा क्या है? 50। बेटा, डू वी अंडरस्टैंड दिस? Yes or no? So let's check. This is 25, that's 20 and 5, that's 45, right? So 50. So if they want us to find out the missing values, कहीं ना कहीं लिखा होगा complete table 2.1 by filling in the 3 missing values. तो पहले जरा आप टाइम लो और इसको फिल अप करो, फिर मैं करता हूँ। लेट्स सी कि आप क्या आंसर्स निकालते हैं। पहले वाले में कितना आएगा? 15 आएगा। क्या आएगा? 15 आएगा या 15.0 आएगा? 15.0 या 15 का कैसे पता चलेगा? दैट वुड बी क्वेश्चन। टेबल के हिसाब से आएगा, देखें टेबल के हिसाब से आएगा। क्या यहाँ पे 20.0 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो क्या आप यहाँ पे 15.0 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यानी कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे 15.0 लिख दिया, उसको इसका मार्क नहीं मिलेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मार्क नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, देन दिस इज मिसिंग 18. How is this 18? That is basically 50 minus 25 minus 7, which is 18. And since पूरा टेबल डेसिमल प्लेसेस में जा रहा था, this should be 18.0. तो 15 and 18.0. Is this understood to everyone? Good. आगे आते हैं. This is still missing. That's the highest temperature rise. टेम्परेचर राइज अब हम ये कैसे निकालें? तो टेम्परेचर राइज होगा, इनिशियल टेम्परेचर और हाईएस्ट टेम्परेचर मौजूद है, राइट? इनका डिफरेंस होना चाहिए। सो 33 minus 26.5, 6.5 degrees. डन। ऑनलाइन वाले भी कुछ कह रहे हैं भाई, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है, ठीक है। क्या इस पे सब कुछ पेंसिल है? सब कुछ पेंसिल है। डन, ओके, लेट्स मूव ऑन। अब वो आपसे कहता है parts of the thermometer used in experiment 5 are shown in figure 2.1. ठीक है, the liquid levels inside the thermometer are missing. Complete figure 2.1 by drawing in the liquid level to show initial temperature of P in experiment 5. Okay, initial temperature of P in experiment 5. So this is experiment 5 here. This is experiment 5. Initial temperature is this, which is 26.0. So we should draw a liquid level like this.
26. And then I'm going to draw a box to exactly label this. क्या क्या होने वाला है? अभी से पिक्चर खिंचवा दूं, वापस तो लाने में मसला होता है। तुम खींच लो ना, तुम मतलब क्लास में बैठे हुए रील बना लो। स्ट्रगलिंग विद केमिस्ट्री, सुबह सुबह P4 बना दो, मीम बना दो। 32.5 is the final temperature, right? Highest temperature. So the highest temperature reached in experiment 5 is 32.5. So this is 32, that's 33, right? तो अब क्या करें? 32.5 बने, 32.5 exactly mid में। That's how you show it. That's 32.5. ठीक है, ये तुम्हारे बीकन के दोस्त हैं? इसको हमें सादा पढ़ा दिए, इसको कौन पढ़ा रहा? तुम लोग सारे चैप्टर के हो सारे? नहीं नहीं, तुमने नहीं, क्लास में सिर्फ इन दिनों में सिर्फ उतनी तफरी अलाउड है जितने हम सोए नहीं। वैसे इन दिनों में सब पढ़ रहे हो। नहीं वो है ही ऐसे, और कुछ तो फिर उन्होंने सीआई का एग्जाम नहीं देना। चलें खैर, आगे चलते हैं, बाद में बातें करेंगे। ड्रॉ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर राइज अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यू। टेम्परेचर राइज विद क्यू, you should plot the point 00 as there is no temperature rise, when no q is added. Okay, सबसे पहले तो 00 प्लॉट करना, वो तो हम कर ही देते हैं। तो this should be 00, ठीक है। Plot the temperature rises and volumes of q from table 2.1. ओके, तो आप पहले आप प्लॉट करें, फिर मैं प्लॉट करता हूँ। बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी। डन।
This should look like something what you have done. तो पहले तो देखो ध्यान से देखो, आपने फर्स्ट पॉइंट प्लॉट किया 5 2 पे, x is 5 y is 2 टेबल में। सेकंड पॉइंट आपने प्लॉट किया 10 4, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपने प्लॉट किया 15 और 6। फोर्थ पॉइंट है 0 0। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, चारों पॉइंट्स ऑन लाइन होनी चाहिए। इज इट डन? सबसे हो गया ये? कोई ट्रबल, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? पक्की बात है, गुड। देन व्हाट वी हैव, अब यहाँ पे उसने हमें कहा था कि एक वैल्यू है 18, राइट? सो वी हैव टू फिगर दैट आउट टू अकाउंट। So 15 and 20, and you see how many small boxes? 10. That means each box is 2. What? 2 cubic centimeters. So this is 15. After 2 small boxes, this is going to be 16. Then after 4, this is going to be 17. After 6, this is going to be 18, right? So 18 के ऊपर आपने पॉइंट मार्क किया 6.5. Now 6.5 exactly 6 और 7 के बीच में होगा, ठीक है? 6 और 7 के बीच में होगा। तो this should be 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.10, यानी कि 7। तो ये यहाँ पे बीच में हमें लाइन 18 and 6.5, 20 and 6.5, 25 and 6.5। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन इन्हें कनेक्ट करने के लिए बनानी, एक स्ट्रेट लाइन इन्हें कनेक्ट करने के लिए बनानी, और इनका क्लियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आप जब अपने फाइनल सीआई में कर रहे होगे तो आप एक क्या कहते हैं ब्लू पॉइंटर से भी कर सकते हो, एक ब्लैक पॉइंटर से भी कर सकते हो, आप एक पेंसिल से कर सकते हो, एक ब्लू पॉइंटर से कर सकते हो। तो जस्ट शो 2 स्ट्रेट लाइंस। इज दिस अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने रफ लाइन बनाई, वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने ब्लॉक बनाया। देखो ब्लॉक का क्या मतलब है, व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे डू समथिंग लाइक दिस। इसका कोई मार्क नहीं होता, इट शुड बी अ वेरी शार्प पॉइंट। ये नहीं करना है, फिलिंग नहीं करनी है, इट शुड बी अ सिंगल पॉइंट, एग्जैक्टली सिंगल पॉइंट। डू यू गेट इट? इज दिस अंडरस्टूड? वरना स्ट्रेट अवे अगर उसको इस पूरे ग्राफ में एक भी ब्लॉक दिख गया, दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक, तो दिस इज 0। तो अगर आप इसको बहुत कैजुअल बनाएंगे ना, तो वेरी इजियर ग्राफ would be converted into a very difficult graph, and you won't be able to score any marks here. Once this part is wrong, rest of the question would be wrong. You guys get this? ठीक है, आगे चलता है। अब एक और चीज कर लेते हैं एहतियातन, वो ये है, लेट्स रीड दिस। इस वक्त टाइम तो बेसिकली 6.5, मतलब टेम्परेचर तो 6.5 है, और इस क्रॉस सेक्शन पे वॉल्यूम ऑफ क्यू कितना है? दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। कितना वॉल्यूम ऑफ क्यू? ये वाला इंटरसेप्ट रीड करना है शार्पली। अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ करें तो अब आप देखें ये कितना आ रहा है, ये एग्जैक्टली 16 और 17 के बीच में आ रहा है। तो क्या होना चाहिए? 16.5 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, ये ज़हन में रखना। अब आते हैं आगे रिमेनिंग पार्ट्स में। तो लेट्स ट्राई दिस। ये है वो स्टोशियो जो डराती है, लेकिन अगर ग्राफ सही है तो फिर कोई मसला नहीं है। सही, the point where the two lines intersect indicates the volume of Q that exactly neutralizes 25 cubic centimeter of P. Okay, determine the volume of Q where the two lines on the graph intersect. He just did that. What was the answer? Do you guys get this? Now this is Q which is 2.24 moles per liter. पहला disclaimer मैं फौरन से याद करूंगा, सर ने कल बताया था वॉल्यूम का यहाँ पे यूनिट क्या है और यहाँ पे क्या है। इसका मतलब क्या है कि ये मिसमैच है। इसका मतलब है कि हम अगर फॉर एग्जांपल मोल्स फिगर आउट करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉशियस। तो पहली चीज, यूज योर आंसर टू डी, दैट मींस दिस आंसर टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज
इस इक्वेशन में what we have so far known is two things. First thing what we know is volume of HCl. Do we know it? Yes, this is what we figured out, right? And what else do we know? We know concentration of HCl. What's that? What's that? 2.24, and this is 16.5. So first we have to convert this into cubic decimeter. Let's divide it with 1000. So what do we have? 0.0165 liters. क्या ख्याल है? And this is now moles per liter. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे उसने कहा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करो. In order to have concentration, what should I be having is moles per unit volume. और अगर आपको फॉर्मूला भूल भी जाए ना, तो देखो यूनिट्स देखो, मोल्स डिवाइडेड बाय ये किसका यूनिट है? वॉल्यूम. तो मुझे मोल्स पता कैसे चलेंगे? KOH के इक्वेशन से पता चलेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस से पता चलेंगे. पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं HCl के मोल्स निकालता हूं. ठीक है, HCl के मोल्स कैसे आएंगे? HCl का वॉल्यूम नोन है, HCl की कॉन्सेंट्रेशन नोन है. तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, N इज इक्वल्स टू CV. अब ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेशन तो KOH की निकालनी है, उसके ऊपर तो मैं अभी तक गया भी नहीं हूं. राइट नाउ आई एम वर्किंग ओनली फॉर HCl. व्हाई एम आई वर्किंग फॉर HCl? बिकॉज HCl का वॉल्यूम पता है और HCl की कॉन्सेंट्रेशन पता है. KOH का कुछ भी अभी नहीं पता, और KOH में मैं भी जा भी नहीं. इज दिस अंडरस्टूड? अब आते हैं आगे. तो सिंस वी नो C कितना है? 2.24. V कितना है? 0.0165. क्या आंसर आ रहा है? जल्दी जल्दी सब बताओ, कंफर्म करो. 2.24 times 0.0165. 0.03696. Is that correct? 0.03696 मोल्स आ रहे हैं. मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने? यस और नो? अब बताएं, व्हाट शुड आई डू? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हाट आई कैन सी वेरी क्लियरली इज, पहले तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है. ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, बड़ा आराम से बैलेंस नजर भी आ रही है. हमें पता चल चुका है HCl के मोल्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जितने भी हैं एग्जैक्टली उतने ही KOH के भी. 1:1 का रेशियो है. लेकिन अगर 1:2 का रेशियो होता या 2:3 का रेशियो होता तो फिर हमें कॉन्शियस होना पड़ता. लेकिन फिलहाल सिंस इट इज 1:1 का रेशियो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. व्हाई? बिकॉज अगर HCl के मोल 0.03696 हमने कैलकुलेट किए हैं, तो KOH के भी कितने होंगे? 0.03696. इज दिस अंडरस्टूड? अब क्वेश्चन इज वॉल्यूम कितना होगा, ये कैसे होगा? वॉल्यूम ऑफ टी कितना होगा? तो देखें, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा भाई, ये रहा, गिवन है. सो वी हैव वॉल्यूम, राइट, एंड वी हैव मोल्स. अब एक और फिर से मिसमैच है, वो क्या है? फर्स्ट इज, क्या हमें KOH के मोल्स पता है? यस और नो? अभी तो हमने पता किए. हमने पहले किसके पता किए थे? HCl के. HCl के मोल्स हमने पता किए थे. फिर हम कहां पे गए? इक्वेशन पे गए, और हमने रेशो मेथड से पता किए किसके मोल्स? KOH के मोल्स. प्लीज नोट इट डाउन कि पहले HCl के मोल्स निकाले थे, इक्वेशन को देखकर रेशो अप्लाई किया, 1:1 का रेशो था. देन वी हैव वर्कड आउट व्हाट? मोल्स फॉर KOH. डन, कहानी खत्म हो गई. अच्छा जी, मोल्स आ गए 0.03696. वॉल्यूम ऑफ टी कहां से आया? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये रहा, विच इज 25 क्यूबिक सेंटीमीटर. दूसरा डिस्क्लेमर, उसने मुझे कहा है वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करो क्यूबिक डेसीमीटर्स में. मेरे पास क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर. तो मैं क्या करूं? मुझे करना चाहिए इसे भी कन्वर्ट. सो मैं 25 से डिवाइड नहीं करूंगा, क्या करूंगा? 25 डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा. ये डिवाइडेड बाय 1000 क्यों हुआ? क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना था? क्यूबिक डेसिमीटर. इज दिस अंडरस्टूड? तो आप आंसर निकाल लेते हैं. So 0.03696 divided by 0.0
25 which is 1.4784। अब इतना एक्यूरेट आंसर नहीं देना, मतलब इतना प्रिसाइज नहीं जाना, एक डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे इसे। सो दिस शुड बी 1.5 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। काम करो काम। डन। ये बताओ समझ में आया सबको? पक्की बात है, खुद कर सकोगे ये वाले क्वेश्चन को? समझ लो इस दफा भी ये आने वाला है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा सेम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिसेंट ईयर्स में रिपीट हो रहा है। चेंज ये हो सकता है कि अब इक्वेशन में -2 का रेशो, ये हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अदर देन दैट एवरीथिंग वुड स्टे सेम। डन, चलो। अब मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। मेजरिंग सिलेंडर यूज करा है वो, ठीक है। दिस इज व्हाई द वॉल्यूम्स ऑफ वाटर इन टेबल 2.1 आर नॉट गिवन टू 1 डेसिमल प्लेस। जो मोस्ट कॉमन एरर है, बच्चा लिखता है मेजरिंग सिलेंडर इज नॉट एक्यूरेट, विच इज इनकरेक्ट। अब क्वेश्चन इज, पहले समझो व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाई डू वी हैव डिफरेंट इक्विपमेंट्स। तो पहली चीज, मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेरिमेंट टाइम कर रहा हूं, कोई चीज का टाइम मेजर कर रहा हूं। टाइम मेजर करने के लिए मैंने एक वॉल क्लॉक रखी हुई है जो नॉर्मल होती है घरों में, वो रखी हुई है, और मैं उससे टाइम मेजर कर रहा हूँ। और दूसरा एक बच्चा है, वो उसी एक्सपेरिमेंट का टाइम मेजर कर रहा है स्टॉप वॉच से। ठीक है, कुछ समझ आया? वॉल क्लॉक जो एनालॉग वाली होती है जिसमें आर्म्स होते हैं, डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, एनालॉग वाली। और एक बच्चा है जो स्टॉप वॉच, उसने सेल फोन की यूज की हुई। अब मुझे ये बताओ कि जो एक्सपेरिमेंट का टाइम मेजर कर रहे हैं दोनों बच्चे, उनमें से किसका आंसर एक्यूरेट? दोनों का आंसर एक्यूरेट। दोनों का आंसर इक्वली एक्यूरेट है। मैंने ये नहीं कहा कि घड़ी खराब थी, पहले इस चीज को समझो, दिमाग के बिल्कुल बीच में डालो। एक्यूरेसी का मतलब है आंसर क्या गलत है? जी नहीं, गलत तो नहीं है। गलत होने के लिए या तो किसी की घड़ी खराब होगी या बंदा खराब होगा, ना बंदा खराब था ना घड़ी खराब। तो आंसर क्या है? एक्यूरेट। अब क्वेश्चन इसके सर, जो बंदा एनालॉग क्लॉक से आर्म्स और सेकंड्स को देख के मेजर कर रहा है, वो मुझे आंसर करेगा ज्यादा से ज्यादा भी किस चीज में? वो मुझे आंसर करके बताएगा टाइम। अगर वो बताता है फॉर एग्जांपल, तो वो मुझे बताएगा भाई इस वक्त हो रहा है फॉर एग्जांपल, मतलब इस बंदे को लगे हैं लेट से 45 सेकेंड्स, या वो बताएगा इसको लगा है 1.45 मिनट्स, यानी कि 1 मिनट और 45 सेकेंड्स। इस तरह से वो टाइम बता सकते हैं, है ना? या हम बता सकते हैं, जैसे हम अगर नॉर्मल घड़ी से टाइम देख रहे हो, 5 मिनट, 10 मिनट, हम कभी भी सेकंड भी नहीं बताते, क्योंकि सेकंड तो हर वक्त चेंज हो रहा होता है। इज दैट करेक्ट? हमने कभी सुना है किसी ने, आपको बताओ, घड़ी देखकर 5.25 मिनट रहते हैं?
You guys get this? Reason is we can't see this. अब अगर उसका थोड़ा सा स्केच कर लें हम, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 1 2 3 4 5 के बाद लिखा हुआ है 2, तो स्मॉलेस्ट दिस डिवाइस कैन मेजर इज 1 मिनट. इज दिस अंडरस्टूड? 1 मिनट से छोटा नहीं हो सकता. 1.0 मिनट नहीं बता, 1 मिनट बता. इसका मतलब है कि एक्यूरेसी का क्वेश्चन नहीं, एक्यूरेसी का क्वेश्चन नहीं. ठीक है, एक्यूरेट हो सकता है. अब आते हैं वो बच्चा जिसने स्टॉप वॉच से मुझे बताया, उसने मुझे टाइम बताया 45.12 सेकेंड. तो भाई अब सवाल ये है कि 45.12 में और 45 सेकेंड में, सर किस चीज का डिफरेंस है? अगर एक्यूरेसी का डिफरेंस नहीं है, किस चीज का डिफरेंस है? प्रेसिजन का डिफरेंस. डू यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? प्रेसिजन इज कंट्रोलिंग डेसिमल प्लेसेस. यही वो मसला होता है जो 90, यानी कि अगर हम इसका भी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़े ना आपके साथ, 99.9% कैंडिडेट वुड हैव रिटन इनएक्यूरेट है, जो कि गलत होगा. भाई इनएक्यूरेट कैसे हो गया? मेजरिंग सिलेंडर या पिपेट या ब्यूरेट, गलत वॉल्यूम थोड़ी मेजर करेंगे. डू यू गेट दिस? मेजरिंग सिलेंडर के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट होगा वो होगा 1 मिलीमीटर या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, बस. 1.0 नहीं लिखा होगा उसके ऊपर. उसके ऊपर क्या लिखा होगा? 1 2 3 या 5 10 15 20 इस तरह लिखा होगा. लेकिन अगर आप ब्यूरेट लेते हो, वहां होगा 25.0. पेपेट लेते हो 5.0. तो किस चीज का फर्क है? प्रिसिजन का. किस चीज का फर्क नहीं है? एक्यूरेसी. इनएक्यूरेट आंसर हो ही नहीं सकता है कभी भी, और कोई रीजन नहीं बनता है कि आप मुझे इनएक्यूरेट आंसर दें किसी भी एक्सपेरिमेंट का, चाहे फिजिक्स में खड़े हो चाहे केमिस्ट्री में खड़े हो. भाई इनएक्यूरेट आंसर देने का मतलब ये किस में मसला है? बताएं. एक्सपेरिमेंट करने वाले में, आप में मसला है. तो आप, आपकी गलती है ना, बंदा चेंज करो. तो जब आपसे वो रीजन मांगेगा, P4 फिजिक्स में भी वो रीजन मांगता है कि भाई रीजन दो, ये वाला इक्विपमेंट क्यों यूज किया था, डिजिटल वोल्ट मीटर क्यों यूज कर रहा था, एनालॉग वोल्ट मीटर क्यों नहीं यूज कर सकता मैं. तो कभी एक्यूरेसी को क्वेश्चन नहीं करना है, निकाल के बाहर फेंक दे दिमाग में से. इनएक्यूरेट तो लिखना ही नहीं है. अगर कहीं पे भी किसी भी जगह पे इनएक्यूरेट लिखा, इसका मतलब है गलत कर. क्या आंसर करना है? प्रेसिजन. लेस प्रेसाइज, मोर प्रेसाइज, लेस प्रेसाइज, मोर प्रेसाइज, बस. इज दिस अंडरस्टूड? अब आ जाए आगे. सो सजेस्ट व्हाई द वॉल्यूम्स ऑफ वाटर इन टेबल आर नॉट गिवन टू 1 डेसिमल प्लेस. क्या रीजन दू? एज मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, इज लेस प्रिसाइज देन पिपेट और ब्यूरेट. State and explain why a plastic cup rather than a metal cup is used in these experiments. ये कहां पे डिस्कस हुआ कि प्लास्टिक कप यूज किया, मेटल कप क्यों यूज किया? तो अब याद करें, स्टेटमेंट 1 थी इस क्वेश्चन की, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. दैट मींस हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है. तो अगर वो सराउंडिंग्स पे ही हीट रिलीज कर देगा सारी की सारी, तो जब थर्मोमीटर हम उस न्यूट्रलाइज्ड सब्सटेंस के अंदर डालेंगे तो वो तो हीट डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीट कंडक्शन हो गई होगी अच्छी खासी. तो फिर टेम्परेचर लॉस तो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, या टेम्परेचर गेन तो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा. इसका मतलब है वी आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ गुड इंसुलेटर, सो दैट वॉट एवर हीट is collected within that neutralized product stays with us, so that we can detect that through thermometer. अगर थर्मोमीटर उसमें डालें तो थर्मोमीटर पे कुछ रेस तो हो. अगर थर्मोमीटर डालेंगे और सारी की सारी हीट जो है वो मेटल के साथ कंडक्ट कर जाएगी, तो थर्मोमीटर क्या डिटेक्ट करेगा? कुछ भी नहीं करेगा. तो फिर ग्राफ कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकेंगे. कैलकुलेशन कैसे करेंगे? नहीं कर सकेंगे. ये अब ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी. अब इसका आंसर देना है 2 मार्क्स. पहले दें स्टेट, फिर करें एक्सप्लेन. अलग अलग टर्म्स. स्टेट वाई प्लास्टिक कप इज यूज्ड. स्टेट, स्टेट करना है एज प्लास्टिक इज अ हीट इंसुलेटर. स्टेटमेंट दे दी. अब एक्सप्लेन करें. दिस विल लीड टू
लेस हीट लॉस थ्रू इट एंड टेम्परेचर राइज कैन बी ऑप्टिमली ऑब्जर्व। अच्छा सा टेम्परेचर राइज नजर आ सकता है, हाई टेम्परेचर राइज। स्टेट बाय द मिक्सर इज स्टेट बिफोर मेजरिंग द टेम्परेचर। स्टेट क्यों कर रहा है? स्टेटिंग करे बगैर भी तो वो काम कर सकता है, स्टेटिंग क्यों कर रहा है? स्टेट करना है, सिर्फ स्टेटिंग। क्या रीजन में? रिएक्शन तो जैसे ड्रॉप करेंगे हो जाएगा। वाई आर वी स्टेटिंग? चलें, वो कहता है, वो क्वेश्चन को और भी स्पेसिफिक कर रहा है, स्टेरिंग बिफोर थर्मोमीटर्स टेम्परेचर रीडिंग। व्हाई इज दिस? ताकि नहीं, देखें एक कितना, एक नंबर है कितना आसान है और कितनी मुश्किल हो रही है अभी गेम करनी। अभी तक कोई वैलिड आंसर नहीं आया इसका। That is what you are going to write. How do you state it? For even distribution of heat, for uniform temperature throughout. Do you get it? पूरी कहानियां लिखेंगे, कोई नंबर नहीं मिलेगा जब तक उसकी उसकी क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। State by the mixer is state before temperature, before measuring temperature. So for even distribution of heat, for uniform distribution. अब मैं आपको एक गुड न्यूज दूं, अगर आप फर्स्ट वाला ये वाला जो क्वेश्चन है ये कर लेते हैं सही, ठीक है, फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसका मतलब है अब आपका P3 में P4 में सी आ जाए, एक पूरा सवाल सही सी आ जाएगा, पास तो हो जाए। ये जो मेंटल रिलैक्स्ड स्टेट होती है ना, ये लेके जाती है ए में। अगर आप पहले ही परेशान है ना, देखें आप एग्जाम में जाने से पहले अगर आप डर रहे हैं, इसका मतलब है आपका ए नहीं आएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट होके जाएं, देखें देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बिटवीन बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। नो वन इज सेइंग बिटवीन बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, प्रिपेयर नथिंग एंड गो अपेयर इन द एग्जाम, दैट्स ओवर कॉन्फिडेंट, दैट्स सुसाइड। ठीक है, आप आए पढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब है यू गाइस आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, दैट्स व्हाट। लेकिन अगर हम परेशान होते हैं ना, एवरीवन इज एग्जाम में टेंशन होती है, एंजाइटी सबको होती है, सब इंसान है। कोई भी ऐसा नहीं होता जो जितना हीरो बन रहा होता है ना उसका उतना गंदा पेपर होता है। तो ये जहन में रखना है, जिसको टेंशन ही नहीं है, जो चिल कर रहा है, बातें कर रहा है, चीखा मार रहा है, इसका मतलब है वो गया आज। जो काम है, थोड़ा सा परेशान है बच्चा, इसका मतलब है वो तैयारी करके आया, उसको पता है कि क्या क्या चीजों की गलती हो सकती है। ठीक है, अब आप जब लैब में, जब आप अपने फाइनल एग्जाम में जाएंगे प्रिपेयर करने के लिए, आपने पहले ये टारगेट करना है कि यार पहले पास हो, बस। पहला सवाल समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दे, दूसरा भी समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दे। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं P4 में क्वेश्चन 1 पहले होना चाहिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं P2 में और P1 में क्वेश्चन लास्ट पहले होना चाहिए, हमेशा। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ बच्चा वो होता है जो P1 में जाए और MCQ 1 से शुरू करे। क्योंकि फिजिक्स में MCQ 1 किसका होगा? क्वांटिटी का होगा, स्केलर का, वेक्टर का, एक्सेलरेशन। जबकि MCQ 40 हमेशा होगा स्पेस का, न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री में MCQ 40 हमेशा होगा मेटल का, ऑर्गेनिक का, पॉलीमर। पहला होगा हमेशा बॉन्डिंग का, पीरियोडिसिटी, बेकार। पेपर को साइकोलॉजिकल डिजाइन करके वो बना। तो P4 में पहला सवाल पहले। क्यों पहला सवाल बहुत स्कोरिंग? P1 में और P2 में आखिरी सवाल पहले। क्यों? क्योंकि P2 का जो आखिरी सवाल है, अगर वो केमिस्ट्री है, वो पक्का पक्का ऑर्गेनिक का, पॉलीमर का होगा, उसमें स्टोचियो भी आएगी। जब तुम 1 घंटे के बाद वहां पहुंचोगे या 1.25 घंटे के बाद वहां पहुंचोगे, तो एक थक चुके होगे, ब्लर हो गए, फोकस नहीं होगा और मुश्किल सवाल कर रहे हो। जबकि उससे पहले तुम आसान आसान सवालों पे अपना दिमाग जाया कर चुके हो। बात समझ में आई? पेपर में बैठे, पेपर रिसीव हुआ, उन्होंने कहा यू मे बिगिन, पेपर फ्लिप किया, पेज पलट दिया, चाहे दुनिया में जो भी हो रहा है, पेपर पलटा, P2 में पीछे से खोला, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री, हमेशा।
नहीं आ रहा सवाल, सेकंड लास्ट पे जाओ, नहीं आ रहा थर्ड लास्ट पे जाओ, लेकिन पहले क्वेश्चन पे टाइम जाया करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी। मेरे जो मैथ्स के सर थे उन्होंने मुझे ये टिप दी थी सबसे पहले, वरना मुझे किसी ने भी ये बात नहीं समझाई थी कभी भी। तो उस वक्त आई रियलाइज, क्योंकि मैं सर साया से पढ़ता था, बड़े मसले होते थे मैथ्स में, समझ नहीं आती थी, और उस जमाने में सर अहमद साहब जानवरों की तरह मारते थे, यानी कि आसरा नहीं करते थे, अभी तो वो बहुत ठंडे हो गए, पहले तो वो पहले मारते थे फिर बताते थे किया गया है। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पेपर में बड़े आराम से 100% तुम्हारे मार्क्स आ सकते हैं, तुम्हारा सिर्फ मसला ये कि जब तुम मुश्किल सवाल पे जाते हो तो तुम्हारे डेसिमल प्लेसेस हिल जाते हैं। तो बेटा तुम मुश्किल सवाल से पेपर शुरू किया कर, आखिरी से शुरू किया कर, पीछे जाएगा हमेशा विंसिलेशन मिलेगा, पीछे जाएगा हमेशा जो है वो कर्व मिलेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पीछे जाएगा हमेशा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का मुश्किल सवाल मिलेगा। सवाल नंबर 1 पे जाएगा, वो बोलेगा भाई यहाँ पे तो डेसिमल प्लेसेस और एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन कर दो, एक आध चीज पीछे से शुरू कर। तो वही चीज अप्लाई करें आप फिजिक्स में भी, गेम में भी, लेकिन P4 में नहीं। P4 का सवाल नंबर 1 पहले होना चाहिए, क्योंकि इससे आपने डिसाइड, आप यकीन करें, जैसे ही आप P2 में दो लास्ट के क्वेश्चंस सही कर लेंगे ना, बिल्कुल सही, आपका जो मोटिवेशन लेवल होगा और जो आपका फोकस लेवल होगा वो इतना जबरदस्त होगा कि यार मेरे 30 में से 30 मार्क्स हैं पक्के। अब दुनिया का कोई सीआई एग्जामिनर आपके भाई को फेल नहीं कर सकता। इसका मतलब है अब जो बचेगा वो सिर्फ ग्रेड को सी से बी या बी से ए या ए से ए स्टार बनाएगा। अब डी का कोई सीन नहीं है, ई का कोई सीन नहीं। लेकिन जब पहले सवाल पे बैठे होंगे ना, वो हमेशा परेशान रहेंगे कि पता नहीं नेक्स्ट पेज पे क्या होगा, पता नहीं नेक्स्ट पेज पे क्या होगा क्योंकि वो जैसे जैसे आगे जाते हैं मुश्किल होती है। ये बताएं, बात समझ में आती है? तो P4 में हमेशा जैसे ही आपका ये सवाल खत्म, तो आप पास होगा, आप चिल होगा, नो टेंशन। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक रखते हैं, बाकी बात इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बाद में। अच्छा, इसमें जो बाकी क्वेश्चन है वो अब आपका होमवर्क हो जाएगा, मैं नेक्स्ट क्लास के लिए आपको बताऊंगा कि हम कौन सा पेपर करें, और अगर आपको कोई बात समझ